the first step, what we can do, we can proceed with two ways. First is we can apply the property of log here directly, like we can write log 2 plus log x. We can start with this step also. Okay, log a into b is equal to log a plus log b. Is it clear? Yes, sir. Further, when we open the bracket, we will get x log 2 dx plus integration x log x dx. Okay, now we can take this log 2 outside the integral. So when we take outside the integral, because it is constant, we are integrating with respect to x only, so we can take all the constant outside the integral. Okay, further this log 2 will be as it is, and integration of x will be x square by 2 plus integration of this part. We have already done the integration of this part in yesterday's day before yesterday's class, I think. Okay. Yes, So sir. like here you're distributed in this form log 2 plus log x. If we had to directly solve it, then how we'll be doing it? Yes, then also we can do so. Let's check how we can do so in that case. So if we want to directly integrate, then we will apply product rule. So by I, let I, L, so this will be our first function, A, this will be our second function. So first function, that means log 2x into integration of second, minus complete integration, differentiation of first, so d by dx of log 2x into integration of second. So it will be like this. Okay. Further, this integration of x will be x square by 2. So this term will be x square log 2x divided by 2. Is it clear? Minus complete integration, derivative of log 2x will be 1 upon 2x into 2. Why it is 1 upon 2x into 2? We are applying chain rule for derivative. So 1 upon 2x into derivative of 2x will be 2. Into integral of this part will be x square upon 2 into dx. Is it clear? Further, we can cancel this 2 and this 2, also the x from here and here. We can take minus 1 upon 2, 1 upon 2 outside, so we will get integration x dx. And integration of this part will be x square upon 2, so we can write x square upon 4 here. Okay. Now this term is also here, x square log 2x divided by 2. That's it. This is our answer. Also, we can take x square by 4 common here from here, and you will get 2 log 2x minus 1. That will be your answer. Yes, sir. Any other doubt from this exercise? Yes, sir. Question number 4, part 1. Okay, question number 4, part 1. Chevy, you have already solved this exercise? 7.8, no? Yes, 7.8. Yes, sir. Sir, I have solved the examples and then till question number 4, second part I have done till there. Last 4 are left. Okay, okay. So for this question, again, we can directly apply product rule, integration by parts. So this will be our first function. This will be our second function. So here it will be first function into integration of second, that is x square plus 1 dx, minus complete integration, differentiation of first, so d by dx of log x into integration of second, that is integration. Bolo Naina? Sir, can't we use the distribution? Yes, we can use that also. Okay. The answer will be remaining same or there will be a difference? No, answer will be same. No difference will be there. Maybe it apparently it will not look like same, but after simplification it will be same overall. Okay. Yes, sir. But if you have more than one term here, then it is better to use that direct by parts. Maybe in some cases it will be easy. Okay. Yes, sir. So here it will be log x and integration of this part will be x cube upon 3 plus x. Okay, further minus integration, the derivative will be 1 upon x. Here the integration will be x cube upon 3 minus x dx. Clear? Further, this part is done. We have already done with this part. Okay, log x.
Also from this part we can take x common and we can cancel it with this. So we will get x square upon 3 minus 1, and here dx will be there. Further you can directly integrate and get the answer. Okay. Yes, sir. Now any other doubt from this? Question number 6, the second part. Okay, question 6, second part. So for 6th second part, the question is integration 2 x cube e raised to power x square dx. Okay, so look at this question. It is little bit different. So first, what we will do with this question, we will write it like this: x square e raised to power x square into 2x dx. What I have done, I have just rearranged the terms. I have taken this x cube in two parts, x square and x, and this 2 is with this x. Okay. Now what we have done this, because we know that the derivative of x square is 2x. So if we replace this x square with another variable t, we will get this 2x dx as dt. That's why we have done this. Okay. So just substitute x square is equals to t. So 2x dx is equals to dt. यहाँ तक समझ में आ गया ना? Yes, sir. क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना लेट से क्यों आ रहे हो? अब बहाने टाइप सी है. ठीक है. हाँ ठीक है. वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हो. एक मिनट. आ रहा क्या? लग रहा है क्या? हाँ. ठीक है. हाँ ठीक है. तो नैना क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हो जाएगा. Yes, sir, हो जाएगा. ओके. हटा दो इस क्वेश्चन को. So here, यस शेवी. so here t will be like, it will be the first term and e to the power t will be the second. ILATE. Yes, t will be first term and this will be our second term. Okay. हाँ. Yes. Any other doubt from this exercise? No, sir. Okay. So can we move to the next topic? I think the next topic is most important from exam point of view. Two topics are actually most important. The first one is partial fraction and the second one is this one, which we are going to discuss right now. So there is a property in which integration of e raised to power x f of x plus f dash of x can be directly written as e raised to power x f of x. So we need not to find the integral of such functions. We can directly write it as e raised to power x f of x. ठीक है. चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें. देखो अगर आपके पास ऐसा फंक्शन आता है इंटीग्रेशन e raised to power x x स्क्वायर प्लस 2x dx. ठीक है. तो अब आप क्या करोगे? इस फॉर्म से मैच करोगे तो f ऑफ x जो फंक्शन है f ऑफ x उसकी जगह पे यहां पर क्या आ रहा है? x स्क्वायर. और f डैश ऑफ x की जगह पे क्या आ रहा है? 2x. तो ये डायरेक्टली किसके इक्वल होगा? e रेस टू पावर x f ऑफ x की. मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? e रेस टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस. दैट्स इट. खत्म हो गया इंटीग्रेशन. समझ गए रिया? इस प्रॉपर्टी का प्रूफ बताऊं? ठीक है. इस प्रॉपर्टी का प्रूफ अगर देखना है समझ लो. अगर ये लिखा है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x. ठीक है. f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx. अगर मान लो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? e रेस टू. फॉर्मूला अप्लाई किए तो समझ में आ गया. अगर मान लो ऐसा लिखते हैं e रेस टू पावर x log x प्लस 1 अपॉन x dx, तो क्या होगा?
नहीं, log x का डिफरेंशिएशन ये Sir, होता है. e to the power x log x plus c. करेक्ट करेक्ट, e रेस टू पावर x log x प्लस c. क्लियर है ये? ओके चलो क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज से. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो ऑलरेडी हमने कर लिया. सेकंड का सेकंड पार्ट चेक करते हैं. पेज नंबर 414, पेज नंबर 414 और क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट. क्या लिखा हुआ? इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x x प्लस 1 dx. ऑर्डर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, ये पहले वो बाद में. क्या होगा इंटीग्रेशन इसका? Sir, it is also direct. No, we just have to multiply it inside, so it will be x e to the power x plus c. करेक्ट, x e टू द पावर x प्लस c. दैट्स इट. क्योंकि यहां पर फंक्शन क्या है आपका? ये f ऑफ x और ये उसका डेरिवेटिव है. हाँ कहीं भी लिख दो, उससे क्या फर्क है? मल्टीप्लीकेशन. कराऊंगा ना, रुक जाओ. अभी अभी इसको आगे बढ़े इस क्वेश्चंस पे. ओके नेक्स्ट चेकआउट करो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट. I is equals to integral e raised to power x 1 upon x minus 1 upon x square dx. ठीक है, बताओ क्या होगा इंटीग्रल? Sir, e to the power x 1 by x plus c, because Correct. we have the derivative. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ठीक है, हाँ मैं जान रहा था तुम लोग पूछोगे कैसे. ये f ऑफ x प्लस क्या होता है? f डैश ऑफ x, ऐसा होता है. ठीक है, ये देखो, ये 1 अपॉन x जब है इसको डिफरेंशिएट करेंगे. मान लो मैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू देता हूँ 1 अपॉन x, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x. तो इसको क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1. तो क्या होगा? -1 x की पावर -2. मतलब क्या होगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. समझ में आई ये चीज? इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन x का, इंटीग्रेशन लॉग x होता है. यहाँ डिफरेंशिएशन की बात चल रही है. ठीक है, क्लियर अभी ये? तो Sir? इस, हाँ बोलो. Question number 2, second part, we have not discussed. हो तो गया, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ना. क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट ये देखो, फर्स्ट पार्ट ये देखो सबसे पहले किया है. Yes, sir. ठीक है, ये एक एक लाइन में बनने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं फास्ट मूव कर रहा हूँ. ठीक है, हाँ तो वही लिखना था, ये इसको समझ में नहीं आया इसलिए बता रहा था. पूरी बात सुनते नहीं हो ना तुम लोग. मतलब तुमको कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन और कौन सा उसका डेरिवेटिव है? तो इसलिए तुमको इसका डेरिवेटिव नहीं पता था, इसलिए मैंने ये सब बताया है. ठीक है, हटाऊं अभी मैं? Sir, if in such questions we have the derivative first and then the original function, Yes, so our answer will be same. then also our answer will be same. Suppose if we have, if the function, if the question is like this, e raised to power x minus 1 upon x square plus 1 upon x dx, तो क्या होगा आंसर? सेम होगा, e raised to power x into 1 upon x. ओके, तब भी हमारा फंक्शन यही कंसीडर होगा ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पेयर ये. एग्जैक्टली वही चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सा फंक्शन और कौन सा उसका डेरिवेटिव है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते. ध्यान से सुनना, अब तुम लोग सेलेक्टिव लिसनिंग मत करना. ओके नेक्स्ट तो डायरेक्टली बन जाएगा, उसमें तो कुछ भी नहीं है. इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स. तो इसमें कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स करना है प्लस इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स करना है. क्लियर? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और log x का हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी कर लिया है, वो बाय पार्ट्स अप्लाई करके, ठीक है. ओके नेक्स्ट, अभी नहीं बताऊंगा, वो वीडियो में चेकआउट कर. x अंडर ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x. ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेक करते हैं. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू e रेस टू पावर x dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x
e raised to power x plus c, then find the value of f of x. क्वेश्चन देखो इधर पे क्या लिखा हुआ है, आपको ये दिया हुआ है और आपको f of x की वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक Sir, है? it will be 1 by x, no? यस, इट विल बी 1 by x. कैसे पता चलेगा ये? हम इसको रीअरेंज करते हैं, e raised to power x. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर ये पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा और सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा होगा, तो 1 अपॉन एक्स ई रेस टू पावर एक्स होगा, और उसको इससे जब कंपेयर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर, हटा दो ना इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर ई रेस टू पावर x dx। ठीक है, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ई रेस टू पावर 2x लिखा है क्या? ओके, ई रेस टू पावर 2x। तो सबसे पहले रीअरेंज करते हैं, ई रेस टू पावर 2x एज इट इज, ठीक है, और इधर पे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। यहां तक क्लियर सबको? इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 2x, एक, हाँ ठीक है, इसको अभी ऐसे कर सकते हैं। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ? ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 बन जाएगा। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 2x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर dx। ओके, अब क्या करेंगे? करेक्ट, अब यहां पर सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे। ई रेस टू सॉरी 2x को हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? t सब्सटीट्यूट करेंगे। क्लियर? So dx will be equals to dt by 2. यहाँ तक क्लियर हुआ? So this integral will be e raised to power t. Here we can replace it at t minus 1 upon t square, and dx will be replaced with dt by 2. Now we can take 1 by 2 outside, and integral of this will be e raised to power t upon t. समझ में आया ना? फिर t की वैल्यू रख दो, हो गया खत्म। तो e raised to power 2x upon 2 into 2x, so e raised to power 2x upon 4x। हाँ, पूछो क्या डाउट है? नहीं, 2x को तुमने t लिया है, स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, समझ गए ना? ये वाला वो प्रॉपर्टी e raised to power x f of x plus f dash of x, तो ये f of t, ये f dash of t, याद है जो अभी तक हम लोग अप्लाई करते आ रहे थे, तो सर डायरेक्टली ये। ठीक है, और कहीं पर कुछ डाउट? Sir, 4x square is replaced with t square. Yes, 4x square is replaced with t square. Yeah, yes, sir. नैना क्लियर? Yes, sir. हटा दो ना इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ये वाले क्वेश्चन ना 1 मार्क 2 मार्क में आ सकते हैं ना, इसको इसलिए ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट चेक करो जल्दी से। इंटीग्रेशन मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं सीधा, ई रेस टू पावर एक्स को पहले लिख रहा हूं, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ओके, बताओ कैसे करें? Can we substitute x plus 1 equals to t? Yes, we can do that. बट एक सेकेंड वेट करो। बट उसमें ना काफी प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि x प्लस 1 को t करने में ऊपर वाले x को भी चेंज करना पड़ेगा। आंसर उससे आ जाएगा, बट उससे बेटर ऑप्शन मैं बता रहा हूं। नहीं, उससे बेटर ऑप्शन इधर देखो, हम क्या करेंगे, यहां पर इसको x प्लस 1 और माइनस 1 लिखेंगे अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या किया है?
ये नीचे में x प्लस वन है ना, तो मैंने ऊपर में भी x प्लस वन रिक्रिएट करने के लिए प्लस वन और माइनस वन कर दिया। अब इसके पीछे का लॉजिक समझना क्या है लॉजिक, उसके 2 स्टेप के बाद आपको क्लियर होगा। अब क्या करेंगे हम, x प्लस वन अपॉन डिनोमिनेटर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, माइनस वन अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। क्या ये स्टेप समझ में है? अब अगले स्टेप में क्या होगा, ऊपर का एक x प्लस वन और नीचे का एक x प्लस वन कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, e रेस टू पावर x वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। क्या यहां तक समझ में है? ठीक है। अब वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी तक हम लोग काफी बार कर चुके हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हो। वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अरे यार, सर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस स्क्वायर। वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक मिनट, नहीं नहीं एक मिनट, हाँ डिफरेंशिएशन ही पूछ रहा हूं मैं। वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस वन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ? पक्का? तो अब यहां पर ये जो फंक्शन है, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, और ये वाला पूरा पार्ट क्या होगा हमारा, एफ डैश ऑफ एक्स। तो क्या आएगा बताओ फाइनली इसका आंसर? करेक्ट, करेक्ट, ये होगा हमारा आंसर। समझ गए ये? नहीं देखो क्या है, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा ना, तो तुम लोगों का गेसिंग काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक एक तुम लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर इस क्वेश्चन में ना छोटी सी चीज चेंज कर दे, मान लो ये वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है और ये वाला टर्म पॉजिटिव आ रहा है, तो भी क्या आंसर सेम होगा? नहीं होगा, तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, बाहर में माइनस आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस देगा आप लोगों को, जिसमें कंफ्यूज हो सकते हो। Sir, if we would have replaced it with t, so like it will, our answer won't be correct or it will be Yes, if we replace with complicated to t, then solve. also our answer will be correct. But t वाले के साथ भी समझ लो, ठीक है, अगर आप t वाले फॉर्म में जाते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी समझना। If we replace x plus one with t, then the value of x will be t minus one. Okay? Yeah, then e will be t to the Then power. Sorry. just wait. Dx will be dt. Is it clear? Okay. Now this complete integral will be e raised to power, in place of x we will get t minus 1. Okay, under bracket in place of x again we will get t minus 1 divided by t square dt. Is it clear? yahan tak samajh mein hai? Now what we will write here, we will write e raised to power t upon e, बिकॉज ये अपॉन माइनस वन है ना, तो वो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन, e raised to power 1 like this by laws of exponent. Here we can write t upon t square minus 1 upon t square dt. Is it clear? Now we can take this e outside the integral, so it will be 1 upon e. Here it is integration e raised to power t 1 upon t. e पावर में t तो नहीं है ना उसके, ई अकेला एक कांस्टेंट होता है, हाँ ई का फिक्स्ड वैल्यू होता है 2.03 कुछ होता है, ठीक है, तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? एक बार बताओ जल्दी। ओके, अब Yes, इसका sir. इसका इंटीग्रल क्या होगा, इस पार्ट का इंटीग्रल क्या होगा? So e to the power t 1 by t करेक्ट, प्लस सी। plus c. Yeah. नाउ रिप्लेस टी विथ इट्स एक्चुअल वैल्यू, दैट इज एक्स प्लस वन। सो हियर इट विल बी, इट इज एक्स प्लस वन ना, हाँ, e to the power x plus 1 upon e into x plus 1. Okay, further we can shift this e in numerator and you will get e raised to power x upon x plus 1 plus c. That will be your answer. पिछले बार कुछ और आया था क्या? सेम आया ना? हो गया क्लियर? ओके, हटा दो ना फिर इसको पूरा, तुम लोग बना रहे हो ना? हाँ ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा है। अब ये वाला 7th क्वेश्चन, 6 का सेकंड तो हमने डिस्कस नहीं किया ना अभी, हाँ ये वाला किया। चलो ये क्वेश्चन बताओ 6 का सेकंड कैसे बनेगा?
लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ उसमें। इस क्वेश्चन में अलग क्या है पता है? 6 के सेकेंड पार्ट में एक बहुत बड़ी चीज अलग है। एग्जैक्टली क्यूब है, देख रहा है ना क्यूब, क्योंकि अभी तक स्क्वायर आता था, तो स्क्वायर कब आता था नीचे? मतलब मैं ये पूछ रहा था, जैसे देखो यहाँ पर 1/t है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता था? 1/t²। तो किसका डेरिवेटिव 1/x³ के फॉर्म में आएगा? तो अगर 1/x² है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x³। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? तो आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि उसको कैसे ब्रेक करना है। तो अगर समझ में नहीं आया हिंट, तो फिर मैं यहाँ पर बता देता हूं। हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? इसको लिखेंगे सबसे पहले x+1, फिर क्या लिखेंगे? -1, और एक -1 पहले से भी था, तभी तो बैलेंस आउट होगा ना, ये दोनों का x-1 बचेगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? x+1 का होल क्यूब, और ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा dx। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर? तो करना पड़ेगा वैसे अरेंज, क्योंकि हमको नीचे वाले x, नीचे वाली जो टर्म है ना, उस x+1 ही कट सकता है, x-1 x+1 नहीं कट सकता, इसलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x+1 अपॉन x+1 का होल क्यूब। ओके, माइनस ये -1 तो -2 बन जाएगा x+1 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा dx। क्या ये समझे? अब उसके बाद क्या होगा? यहां से ये कटेगा और ये कट के क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो पूरा इंटीग्रल है क्या हो जाएगा? e⁻⁴ हाँ बताना। वेरी गुड। क्या? किस? हाँ बता देता हूँ। तो डिफ्रेंसिएशन पहले पढ़ लेना चाहिए था एक्चुअली, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। 1/x+1 का होल स्क्वायर ऐसा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? d/dx ऑफ x+1 की पावर -2, ऐसा लिखेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये फॉर्मूला तो याद है ना, d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है? n x की पावर n-1। तो इसमें लगाओ x+1 की पावर -3। समझ में आए? फिर चेन रूल से अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, उसका डेरिवेटिव तो 1 आना है, तो इसको अंदर भेज दो, तो -2/x+1 होल क्यूब, ये आया उसका डेरिवेटिव। तो थोड़ा पेन यूज कर लो अगर डायरेक्टली नहीं बन रहा है तो। ठीक है, ये f(x) है, ये f(x) है, प्लस ये पूरा f'(x) है। समझ गए? नहीं वो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन आपको क्या ना प्रॉपर अप्रोच पता होना चाहिए। अगर अगर मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया ना, तो तुम लोग डेफिनेटली गलत कर सकते हो। हाँ, अगर ये सॉल्यूशन में आया तो स्टेप मार्किंग तो मिल सकती है, एक आध प्लस माइनस की गलती। हाँ, लेकिन एमसीक्यू 20 मार्क्स का वेटेज है। ओके, MC 1 मार्क वाले में नहीं मिलता ना स्टेप मार्किंग। हाँ ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ चलो चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। इंटीग्रेशन, मैं इसको रीअरेंज पहले ही कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट डाउन करते साथ। हाँ करो ना खुद से, मैं मना किया क्या? ये कौन सा क्वेश्चन है? मैं गलत नोट कर रहा हूँ क्या? 7 का फर्स्ट करना है ना हमको? ओके, ये बना लोगे मेरे ख्याल से। Certain this one. ओके, डन। You have done all the questions from this, Chevy? Last one The also? second one I'm doing.
7th second. हम्म 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 Okay, so after this we have definite integrals. So ये वो last exercise था indefinite integral का, ठीक है? Okay. हो गया, बन गया ये क्वेश्चन. Shavi, if you had done this exercise, try to solve example 6, 5 and 6. Yes, sir. पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना. नैना बना रहे हो ना क्वेश्चंस? Yes, sir. तुम लोग टैग्स तो बहुत सारे लगा के रखे हो बुक्स में. अच्छा, ये मैं पूरे क्वेश्चंस करवाया हूं ना क्लास में? तुम लोग आते थे क्या उस समय? मेरे ख्याल से तो आते थे. एक बार में तो भूल जाते हैं, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस जरूरी है. बताना है, कर सकते, कर सकते. ठीक है, तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक बार चेक करना. 2x को t लिया, dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2, ये आया होगा. x इज इक्वल्स टू t बाय 2, ये आया होगा. इंटीग्रेशन e रेस टू पावर t इंटू t बाय 2 अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt. 1/2 बाहर ले लेंगे, e रेस टू पावर t अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर dt. क्या dt की क्या वैल्यू है? dx की वैल्यू dt बाय 2 है, वो मैंने यहीं पर डाल दिया था. अच्छा, ये नहीं डाला है क्या dt बाय 2? तो वो बाय 2 मतलब बाय 4 हो जाएगा. ओके, ठीक है. हाँ, अभी इसके बाद क्या करेंगे? यहां तक का प्रोसेस तो हो गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे वही बताओ. अभी तक हर क्वेश्चन में क्या कर? वेरी गुड, समझ में आया यहां तक? ऐसा कर रहे थे ना हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस में. हम्म
नहीं नहीं, तुम लोग एक बार बनाओगे तो कर लोगे, क्यों? बाकी बच्चे तो किए ना, दूसरी बैच वाले। हाँ हाँ। बाकी तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में तो खाली फॉर्मूला है, और कहाँ कुछ है। फिर लास्ट में टी की वैल्यू रख देना। हो गया तो बताओ, जल्दी करो इसको, फिर मैं एग्जाम्पल्स कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। Sir, हाँ बोलो नैना। in example 5, we can directly write the answer. What is the need to integrate by part? What is needed to integrate which term? No, sir. What is the need for using integration by parts here? Yes, So actually yes. sometimes they can ask us to prove also, no? Yes, but for this type of question, it is rare to ask the proof of that property. Okay. But if mostly I have not seen any time that they have asked to prove the property. But if they ask, it is simple. It is a 3-step process to prove this property. हाँ वो सब डिलीट हो गई। एक मिनट, मैं ये पहले एग्जांपल्स बता दूं तुम लोगों को। एग्जांपल 6, एग्जांपल 5 देख लो, फिर एग्जांपल 6 वैसे ही बना लेना। फिर उसके बाद मैं अब पूरे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। 1/log x माइनस 1/log x होल स्क्वायर dx। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें भी हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो log x को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग मतलब एक्सपोनेंट लेंगे दोनों तरफ। एक्सपोनेंट मतलब e की पावर log x इज इक्वल्स टू e की पावर t। समझ में? तब इसकी प्रॉपर्टी होती e और log कट जाता है, तो x इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, e रेस टू पावर t। क्या ये समझ में है? सब्स्टिट्यूशन करके ये इजीली सॉल्व होगा, इसलिए। हाँ वही तरीका है जो अभी मैं बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में अगर 1/log x होल स्क्वायर, अगर ऐसे फंक्शन। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ। अब डिफरेंशिएट करें, आगे बताओ। डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। इसका हाँ हाँ, डी बाय, हाँ सही बोल रहे हो, ई बेस लॉग है इसलिए ई कटा। 10 बेस लॉग होता है 10 कटता, हालांकि आपके में सब, हाँ हालांकि सब ई बेस लॉग वाले ही रहते हैं। तब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर टी करेंगे। डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू टी। समझ में? इसका डेरिवेटिव क्या होगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्यों ये ऐसा हुआ, समझ में आया? चेन रूल लगा। अब dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो dx इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर टी dt। ठीक है, ये आ गया। आप अगर इसको डिफरेंशिएट करके dx निकालना चाहते तो भी निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब अगर आप, हमने इसको डिफरेंशिएट किया ना, अभी इसको किया और फिर dx dt के टर्म्स में निकाला, तो 1/x इज इक्वल्स टू क्या जाता है, dt अपॉन dx। तो dx इज इक्वल्स टू क्या जाता है, x dt। अब x की वैल्यू क्या है, e रेस टू पावर t, तो e रेस टू पावर t dt वही आता। समझ गए ना? अब इसमें पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 क्या आएगा, बोलो देखो और बताओ क्या आएगा, समझ में आया? -1 अंडर ब्रैकेट, यहां पर क्या आएगा बताओ, समझ में आया? अब क्या बनेगा ये, अब e रेस टू पावर t की वैल्यू बोलो क्या है, e रेस टू पावर t की वैल्यू देखो क्या है, x। e रेस टू पावर t की जगह पे x, t की जगह पे log x।
प्लस सी, खत्म, ये हो गया आंसर। समझ गए? हम्म। मेरे ख्याल से तो इनफ है, बहुत है, मुझे लगता है। हम्म। आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक को पूरा अगर सॉल्व कर ले रहे हो तो वो मोर देन सफिशिएंट, आप 80% से ज्यादा आराम से स्कोर कर लोगे। नहीं, एक बुक को मैं इसीलिए मिनिमम बता रहा हूँ ना, 80%। मतलब अब वो सब डिस्कशन नहीं करते, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं, ठीक है? ओके, सो ये हो गया होगा पूरा। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे अब आएगा डेफिनाइट इंटीग्रल। तो डेफिनाइट इंटीग्रल मैं एक बार शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन दूंगा मैं 7.10 से, जो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? Sir, if we could once solve example 4. एग्जाम्पल 4, पेज नंबर, टेल मी द पेज नंबर। 412. 412, ओके, यस। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर आ गए तो देख लो। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं हर बार जब ये दिया हो ना आपको log x तब सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? मतलब कई बार बिना सब्स्टिट्यूशन के भी बन सकता है। देखो जैसे यहां पर मैं ये सोच रहा हूँ कि e रेस टू पावर x को पहले कर देता हूँ, बाकी सबको एक ब्रैकेट के अंदर भेज देता हूँ, तो ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, है ना? 1/x अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? x log x का स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 log x अपॉन x dx। क्या यहां तक समझ में है? ये x और x कट गया, तो क्या बचा आपके पास? इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x अंडर ब्रैकेट log x होल स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन x इंटू dx। क्लियर हुआ ये चीज? अब यहां पर ध्यान दो, मान लो मैं इसको लेता हूं f ऑफ x, मान लो मैं इसको f ऑफ x कंसीडर कर रहा हूं, तो f ऑफ x मैंने किसको लिया है? log x का होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो f डैश ऑफ x, तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव? 2 log x आएगा, चेन रूल लगेगा, तो x स्क्वायर का 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ऐसे ही होगा। तो फर्दर क्या हो जाएगा? 2 log x इंटू 1/x, यही होगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 log x अपॉन x। ये क्या आया आपके पास? f डैश ऑफ x। समझ गए? तो ये देखो, ये वाला पूरा पार्ट क्या है? f डैश ऑफ x। क्लियर ये चीज? सो क्या होगा इसका इंटीग्रल? e रेस टू पावर x इंटू log x का होल स्क्वायर प्लस c, दैट्स इट। शैवी, इज इट क्लियर? Yes, sir. डाउट सुन के हटा दो इसको। तुम लोगों की क्लास में कितने बच्चे अप्लाइड मैथ्स वाले? अभी सब पछता रहे हैं? अच्छा, उन लोगों की क्या सिचुएशन है? हम्म हम्म, ओके।
चलो एक्सरसाइज 7.10 सॉल्व करें अब। डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल मैं सीधा आपको एग्जांपल्स क्वेश्चन से समझा रहा हूं कि क्या है, ज्यादा उसकी थ्योरी पे नहीं जा रहा हूं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, हाँ ये लो थ्योरी सुन लो इधर। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 से 3 एक्स स्क्वायर dx, ये लिखा हुआ है। तो इसमें पहला चीज ये कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो कर दो इंटीग्रेट। क्या होता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब अपॉन 3। फिर उसके बाद जो x वाली टर्म है ना उसको ऐसा ब्रैकेट में लिख दो, और यहाँ पर नीचे पे लिखो 2 और ऊपर पे लिखो 3, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, समझ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, x की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, मतलब 3 और उसका क्यूब है इसलिए 3 क्यूब। फिर माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट लिखेंगे, मतलब कि 2 और उसका क्यूब, समझ गए। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 अपॉन 3। कितना आएगा डिफरेंस, 19 अपॉन 3। ये हो जाएगा आंसर, समझ गए। हाँ, हमने क्यूब नहीं किया, हमने x की जगह पे 3 रख दिया है, फिर माइनस लिखा, फिर एक बार 2 रखा। हाँ, बस यही चीज ध्यान रखनी, जो भी इंटीग्रल आया उसमें अपर लिमिट रख दो, माइनस करके लोअर लिमिट। हटा दूं इसको मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तुम लोग ये सब टाइम पास करते रहोगे तो फिर वही सिचुएशन आएगी और मुझे पसंद नहीं आएगा। नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फटाफट सॉल्व करो और बातें करने पे ध्यान मत दो। जल्दी इंटीग्रेट करो, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। नहीं, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का क्या होता है एक्स, समझ गए। यस, और एक्स का डिफरेंशिएशन यहां तक क्लियर। अब यहां पर लिमिट लगा दो, तो ये लिमिट आ जाएगी -1 से +1, यहां पर भी लिमिट आ जाएगी -1 से लेके +1, समझ में आई ये चीज। तो अपॉन का 2 इधर एज इट इज, यहाँ अपर लिमिट रख रहा हूं मैं, मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखा करो नहीं तो गलती होगी। देख लो इधर ध्यान से सुनो रिया, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहां पर भी वही करेंगे, तो बताओ क्या लिखेंगे, 1 माइनस ऑफ, समझ में आई ये चीज। तो ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, 0, और ये कितना हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 2। हाँ चलो जल्दी करो अब। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस में आपको यही काम करने हैं। ठीक है, और अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको फॉर्मूले, हाँ बिल्कुल सही। क्या, Sir, हाँ बोलो। sir, in the next question, the answer of 1 by x is log x. So how we will be putting values? No problem, put the upper value log 3 minus log 2, so it is 1 upon x dx, हाँ सही। So integration will be log x, the lower limit is 2, upper limit is 3, so just put upper limit log 3 minus log 2. Is it clear Naina? Yes, sir. So log a minus log b, it will be log a by b, so log 3 by 2, that's it. ठीक है, सो एक काम करो, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों का। तो मॉड, एक्चुअली जो इंटीग्रेशन होता है ना लॉग मॉड एक्स होता है वो, तो मॉड में लेना उसको, ठीक है।
हम्म, हाँ, एक मिनट भैया, इधर आओ ना, इधर। हाँ, दे दो चाय। हम्म, हाँ, लॉग कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ, log 1 माइनस log 4। हाँ। हम्म। हम्म। सब में ऐसे ही होता है, ठीक है। नैना, शेवी, सॉल्व कर लोगे ये एक्सरसाइज कंप्लीटली? Yes, sir. ठीक है, ये सॉल्व करो और जो Yes, डाउट्स है sir. मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछो, ठीक है। Sir, I have one doubt from यस, like आस्क द डाउट। yes, sir. एक मिनट So, for लेते जाओ। example, if we have integration of e to the power x, टेल मी द पेज नंबर, इन विच पेज नंबर यू हैव डाउट? sir, it is not on any page number. जस्ट अ सेकेंड, कहाँ रख दिया पर्स में? हाँ, यहाँ है। पेज नंबर? Sir, it is not in the book. अच्छा, नॉट इन द बुक। यस, आस्क द क्वेश्चन। So, like if we have integration of e to the power x square, e to the power x square, yes, sir. So then how we'll solve it? how we Dx. can solve this particular question? Okay, And same thing for if we have to find f dash x. derivative, we can easily find derivative of this function. Suppose if we have e raised to power x square, here let us consider f of x is equal to e raised to power x square. So its derivative will be d by dx of e raised to power x square. First we will consider this x square as x, and its derivative will be same, e raised to power x square. Now we will differentiate this x square, and derivative of x square will be 2x. That's it. This will be the derivative. Is it clear? Yes, sir. Huh. But the integration, for integration, it is, I think, not easily we can integrate this type of functions. Sir, For I this, tried it with t, like replacing it with if we replace with t, we will get 2x dx is equals to dt. Further, we will get dx is equals to 1 upon 2 x dt. We will get like this. so So then x I dx have taken root t. root t dt, you can start doing with this. So this integral will be 1 upon 2 root, or we can write t raised to power minus half e raised to power t dt. Okay, e raised to power minus half, no, Yes, t sir. raised to power minus half, like this. Further, we have to apply by It parts. into b formula, no? Huh? Say UV formula, like multiplication one. Yes, but I think for multiplication also, when we start applying integration by parts, then also we will stuck in a loop. We cannot integrate for this question. Okay. So like answer is only not possible or it will take time. Actually, by this method, it is not possible. However, in higher mathematics, the integration is defined for this, but it is not in your scope right now. Yes, Okay. sir. हाँ, बताओ। और तुम्हारा आंसर क्या है? दोनों आंसर सही है। सुनो इधर, इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या दी हुई है? -4 से लेके -1, और यहाँ पर क्या लिखा है? 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन तुमने किया, क्या लिखा? लॉग मॉड एक्स, ये लिखा। लिमिट क्या है यहाँ पर? -4 से लेके -1। अपर लिमिट लगाया तो क्या हो जाएगा? लॉग मॉड -1 माइनस लॉग मॉड -4, ऐसा किया तो ये क्या बन जाएगा? log 1 माइनस log 4, ऐसा ही होगा। अब log a माइनस log b तो क्या होता है? log a अपॉन b, तो log 1 अपॉन 4। समझ में आया? log 4 की पावर -1, समझ में आया? -1 सामने आ जाएगा तो -1 log 4, समझ में आया? तो माइनस log 4, यही बुक का आंसर है। तो भी चलेगा, लेकिन
एक मिनट, उससे अच्छा चीज और बता रहा हूं, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो उसको वहीं 0 कर दो, ये आ गया आंसर। ठीक है, हाँ, और डाउट्स क्या है पूछो। हम्म मैं यही पढ़ाते रहता हूँ और कुछ भी नहीं करता। मतलब मेरी क्लास का टाइमिंग बता देता हूँ, इवनिंग 4:30 से लेके अराउंड 7:30 8 तक जाता है। 4 बजे से तुम लोग, हाँ, जो भी क्लासरूम खाली वहां बैठ के सॉल्व कर सकते हो। मतलब बता रहा हूँ, 4 बजे ओपन हो जाती है और 4 बजे से आप जब भी तक सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। 8 बजे तक लगभग मैं रहता हूँ, बीच में मेरी क्लासेस चलते रहती है, तो बीच में बहुत रेयरली गैप मिलता है, कई बार तो मैं बिल्कुल मिल जाएगा, जगह तो है ना बहुत सारी। ये तो पढ़ रही थी ना, आज पढ़ रही थी कि नहीं? हाँ ठीक है, पढ़ सकते वैसे। हाँ, क्या डाउट है, दिखाओ। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। इसमें ना एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, इसमें तुमको ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे बनाने की कोई जरूरत नहीं, बड़े लूप में फंस जाओगे। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x² - a² का, वो अप्लाई करो, क्योंकि तुमको वो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। हाँ बोलो शेवी, क्या डाउट है? Sir, like this exercise will be done. Sir, in the next one we have several properties. So based on that, questions will be asked. फ्रॉम फॉर नेक्स्ट which question? Sir, like after this exercise, properties of definite integrals. Yes, it is there, I think. Sir, although it is there, but not even a single question is available regarding it. Can you check, have you checked any question based on integral of modulus in sample paper which is in OSWAL? Yes, sir, like only short ones are there, like x square plus 2x minus 3 in mod. Like normal ones are there. Okay. Completely property based, such questions are not there. Because for core mathematics, property based question is definitely asked for at least 4 or 5 marks, one question of that. Yes, sir. Okay, but check for the sample paper whether it is there or not. So इसके बाद like जो such hard questions are not there, only short ones are there, and that too for 3 marks. Okay. Just send me a few questions from definite integral which is given in sample paper or in OSWAL whenever you get time. Okay. Yes, sir. So by that I will check, and similar type of question we will solve in this class. Okay. Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 419। सेकंड का सेकंड, हाँ, क्या है लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन 0 to 1 1/2x - 3 dx, ये क्वेश्चन है। हाँ, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो? नहीं, गलत है। सुनो, इस क्वेश्चन के लिए मैं हिंट कर देता हूं एक। आप एक काम करो, 2x - 3 को ना t सब्सटीट्यूट कर लो, ठीक है? क्योंकि वो इजी हो जाएगा ना, 1/t का। 1/x का होता है, देखो क्या होता है, अगर 1/x है ना तो इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, log x। 1/x - 1 है ना तो इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, log x - 1। ठीक है, यही पूछ रहे हो ना? लेकिन एग्जैक्टली 1/2x - 1 है ना, तो उसको log 2x - 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें वो इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 नहीं है। क्योंकि ये वाला जो अप्रोच फॉलो होता है ना, ये तब होता है क्योंकि सब्सटीट्यूशन से उसका शॉर्टकट हमने बना दिया है। एक्चुअल अप्रोच तो सब्सटीट्यूशन ही है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 = dt/dx।
and you will get dx is equals to dt by 2. So further ये क्या हो जाएगा 0 to 1 और ये हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा dt by 2. समझ में? 1/2 बाहर निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t. ठीक है, और इंटीग्रेशन में देखो अब क्या करो, चाहो तो लिमिट भी बदल सकते हो. याद है मैंने बताया था लिमिट बदलना. लिमिट बदलना मतलब क्या है, अभी ये लिमिट x की थी लेकिन हमारा इंटीग्रल t में आया है, तो लिमिट t की बनाओ. t की लिमिट बनाने के लिए आप क्या करोगे, लोअर लिमिट जो है ना x की, तो वो x की जगह पे रख दोगे. ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा. So that we are substituting for t, that those values will be keeping. Yes. Like one time for 1 and the other time for if you 0. want to, if you don't want to change the limit, you can put the value of t in terms of x. So it will be log mod 2x minus 3, and further you can apply the limits in terms of x. Yeah, yes sir. हाँ, मैं इसके बाद के क्वेश्चंस बता दूंगा अगली क्लास में. ठीक है. इसका x minus 1 को t लेना, dx क्या हो जाएगा dt 1/t स्क्वायर ओवर t क्यूब. तो सीधा x minus 1 की पावर -2 लिख देना. हाँ, x minus 1 पूरी की पावर -2. इंटीग्रेशन लगेगा ना, अभी इंटीग्रेशन थोड़ी ना हुआ है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ. अब उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x minus 1 की पावर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं -1/-1. हाँ, n+1 होता है इंटीग्रेशन में. ठीक है. अब क्यों नहीं आ रहे थे, तो मैं कैसे करूं उसमें, अब आना चालू किया तो कराऊंगा.